ठीक है. And histocytic infiltration of the small bowel mucosa, it is a less common cause of steatorrhea that most typically occurs in the young and middle-aged man. तो ये एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स करेगा. This Whipple disease is associated with arthralgia, fever, lymphadenopathy, extreme fatigue, and may affect the central nervous system and endocardium. A similar picture results from Mycobacterium avium intracellular infection in patient with AIDS, यानी कि immunocompromised में होगा. A beta lipopproteinemia is a rare defect of chylomicron formation and fat malabsorption in children associated with acanthocytic erythrocyte, ataxia, and retinitis pigmentosa. Mucosal malabsorption may occur with infections with giardia, numerous medications, colchicine, cholestyramine, neomycin, and chronic ischemia. अच्छा, इसके अलावा जो है ना स्टीटोरिया पोस्ट म्यूकोजल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है. इट इज ड्यू टू द रेयर कॉन्जेनाइटल इंटेस्टिनल lymphangiectasia or to acquired lymphatic obstruction secondary to trauma, tumor, or infection, leads to constellation of fat malabsorption with enteric losses of protein, often causing edema and lymphocytopenia. Carbohydrate and amino acid absorption are preserved. क्योंकि सिर्फ फैट ही वहां से जा रहा है ना, जो काइलोमाइक्रोन है वो तो लिम्फेटिक डक्ट से जा रहे होते हैं ना, तो उनकी होगी सिर्फ, कार्बोहाइड्रेट अमाइनो एसिड की होगी. अब ना इन्फ्लेमेटरी अब हम आ गए हैं फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ क्रॉनिक डायरिया, इन्फ्लेमेटरी कॉजेज या इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म. इन्फ्लेमेटरी डायरिया आप पूछ लें, इट इज अकम्पनीड बाय पेन, फीवर, ब्लीडिंग और अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन. उसमें पेन भी हो रहा होगा, चिनेस्मस हो रहा होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर भी होगा पेशेंट को, ब्लडी स्टूल्स होंगे. The mechanism of diarrhea may not only be exudation, but depending on the lesion site, may include fat malabsorption and hypersecretion or hypermotility from release of cytokines and other inflammatory mediators. तो इसमें ना बहुत सारी चीजें हो सकती है. malabsorption भी हो सकती है, hypersecretion भी हो सकती है, hypermotility भी हो सकती है. जो inflammatory mediators होते हैं cytokine, उनकी वजह से. The unifying feature on stool analysis is the presence of leukocytes और ल्यूकोसाइट डिराइव्ड प्रोटीन सच एज कैलप्रोटेक्टिन. तो ल्यूकोसाइट्स आ रहे होंगे, आप कल्चर कराएंगे, कल्चर नेगेटिव आ जाएगा, तो आप ल्यूकोसाइट डिराइव्ड प्रोटीन सच एज कैलप्रोटेक्टिन, इट इज also diagnostic for inflammatory causes, not diagnostic for some disease. With severe inflammation, exudative protein loss may lead to NSR का, यानी कि generalized edema भी कर सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो जाए उसमें से. Any middle-aged or older person with chronic inflammatory diarrhea, especially with blood, be carefully evaluated to exclude a colorectal tumor. अब पहली सबसे बड़ी वजह इन्फ्लेमेटरी डायरिया की इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, यानी कि क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस. दे आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू फुलमिनेंट एंड लाइफ थ्रेटनिंग. They may be associated with uveitis, polyarthritis, cholestatic liver disease, primary sclerosing cholangitis, and skin lesions, erythema nodosum, and pyoderma gangrenosum. ठीक है. Microscopic colitis दूसरी cause है. It includes both lymphocytic and collagenous colitis, and it is a cause of chronic diarrhea, especially in middle-aged women and those on NSAIDs. Biopsy of normal appearing mucosa is required for histologic diagnosis. अगर आपने सस्पेक्ट किया कि शायद उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, यानी कि क्रोन्स कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस, आपने उसकी क्रोनोस्कोपी वगैरह कराई और उसमें कुछ भी नहीं आया, तो फिर आप उसको लेबल कर देंगे माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस. ठीक है, क्योंकि उसको चिनेस्मस भी हो रहा है, ब्लड भी आ रहा है, ये सारी चीजें होंगी. नंबर 3, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म्स ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी. इसमें भी हो सकता है inflammatory diarrhea with common variable hypogammaglobulinemia. Diarrhea is prevalent and often the result of giardiasis. अब जितनी भी मतलब इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिसमें इम्यूनोडेफिशिएंसी हो, तो फिर जाहिर बात है कि माइक्रोफ्लोरा जो है, फीकल माइक्रोफ्लोरा, वो ओवरहेल्म हो जाएंगे और फिर उनकी मतलब ये कि वो रोक नहीं सकेंगे इंजेस्टेड पैथोजेंस को, जिसमें से एक giardia है. नंबर 4, eosinophilic gastroenteritis भी होता है. Eosinophil infiltration of mucosa muscularis or serosa at any level of GIT may lead to diarrhea.
जैसे ही इओसिनोफिल इन्फिल्ट्रेशन होगी डायरिया हो जाएगा. पेशेंट्स हैव एटोपिक हिस्ट्री. जाहिर बात है आप फिर हिस्ट्री लेंगे भाई एटोपिक छींकें आती हैं और मतलब अर्टिकेरिया वगैरह हो सकता है. शार्कोट लेजन क्रिस्टल्स या एस्थमा की हिस्ट्री है ड्यू टू एक्सट्रूडेड eosinophil contents may be seen on microscopic inspection of stool and peripheral eosinophilia is present 50 to 75% of the patient. अगर gastroenteritis हो रहा है और उसमें जो है वो आपको peripheral eosinophilia भी मिल रहा है तो stool एनालिसिस करना चाहिए शार्कोट लेजन क्रिस्टल्स के लिए. ठीक है, eosinophilic एक्सट्रूजन की वजह से वो होते हैं. तो फिर आपका कंफर्म हो जाएगा eosinophilic गैस्ट्रोएंटेराइटिस. पांचवा अदर कॉजेज हैं रेडिएशन कोलाइटिस. उसमें भी जो है मैल एब्जॉर्प्शन हो सकती है. क्रॉनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज बेसेट सिंड्रोम. फिर है डिसमोटिलिटी कॉजेज. इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है. रैपिड ट्रांजिट accompany many diarrhea as a secondary or contributing phenomena, but primary dysmotility is an unusual etiology of true diarrhea. Hyperthyroidism, carcinoid syndrome, certain drugs, prostaglandin, prokinetic agents produce hypermotility and diarrhea. Generalized autonomic neuropathy is accompanied by diabetic diarrhea. Diabetes में भी जब autonomic neuropathy हो जाती है तो diarrhea हो जाता है ना पेशेंट्स को. तो हाइपरथायरोइडिज्म, कार्सिनॉइड सिंड्रोम, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है भाई, क्योंकि आप जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे ना, अभी मैं बता रही हूँ, तो ये सारी चीजें आपने देखनी है कि थायराइड तो बड़ा हुआ नहीं है उसका. ठीक है. नंबर 7, एक्सीडिंगली कॉमन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. ठीक है, 10% प्रिवेलेंस है इसकी. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्ब्ड इंटेस्टाइनल कोलोनिक मोटर एंड सेंसरी रिस्पॉन्सेज टू वेरियस स्टिमुलाई. अब इसमें जो कोलोनिक मोटर सेंसरी रिस्पॉन्सेज है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं टू वेरियस स्टिमुलाई. हाइपर सेंसिटिविटी समझ लें उनकी हो जाती है. सिम्टम्स ऑफ स्टूल फ्रीक्वेंसी सीज एट नाइट. अब ये बहुत जरूरी है कि आप सारे डायरिया के पेशेंट से आप ये पूछें कि रात में होता है डायरिया. ट्रू डायरिया रात में होगा. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कभी भी पेशेंट रात में बाथरूम नहीं जाता, पूछ लीजिएगा. ऑल्टरनेट विद पीरियड्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन. अब इसमें जो है ना डिस्टर्ब इंटेस्टिनल मोटिलिटी हो गई है तो कभी डायरिया हो जाएगा ऐसे पेशेंट को, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. दे आर अकम्पनीड बाय एब्डोमिनल पेन भी होता है उसमें. ठीक है, रियरली रिजल्ट इन वेट लॉस. वेट लॉस और ट्रू डायरिया में नहीं हो रहा होता और ब्लड भी कभी नहीं आता है. ठीक है, और पेशेंट अगर आपके पास आएगा ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, उसके पास इतना मोटा फाइल का एक बंडल होगा और उसमें हर चीज हुई हुई होगी. सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है ना हर चीज उसकी करवा चुके होंगे, सिग्माइडोस्कोपी, क्रोनोस्कोपी, फलाना डिम्का. बस इतनी मोटी फाइल दे के ही आप डायग्नोसिस बना लेंगे उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा. ये हैरिसन में लिखा हुआ है. मैं नहीं कह रही. फैक्टिशियस कॉजेज देखें. 15% of unexplained diarrhea either as a form of Munchausen syndrome. देखा आपने Munchausen syndrome? देखा है मैंने. Deception क्या होता है वो? Deception of self injury for secondary gain. मतलब खुद ऐसा कुछ कर ले अपने साथ कि कोई आपको फायदा हो जाए उससे. ठीक है, और ईटिंग डिसऑर्डर में भी वैसे हो सकता है जो साइकाट्रिक, दोनों में साइकाट्रिक एवैल्यूएशन की जरूरत है पेशेंट की. सम पेशेंट्स covertly self-administer laxative alone or in combination with other medications जैसे डायबिटिक भी लेने लगे साथ, और surreptitiously add water or urine to stool sent for analysis. सोचेंगे ज्यादातर मंचाउजन सिंड्रोम जो है ना वो सिर्फ औरतों ही को होता है, और वो औरतें उनका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि उन्होंने एज अ नर्स काम किया हुआ होता है, या हॉस्पिटल बैकग्राउंड की उनकी ना कोई ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री आपको मिलेगी, तो उनको थोड़ा थोड़ा पता होता है चीज़ों का. और वो ये मंचाउजन सिंड्रोम अजीब चीज़ है. किसी दिन मैं आपको बताऊंगी मंचाउजन सिंड्रोम जो मैंने देखा था उसमें वो पेशेंट क्या करी थी. बहरहाल ये जो है ना इसमें फिर पेशेंट को अगर कन्फ्रंट करो कि मतलब क्या आप कर रही हैं तो बहुत गुस्सा हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि उसने ऐसी कोई हरकत की है. तो इसमें फिर यही होता है कि आप जो है ना उसको बहुत अच्छे से डील करें और गुस्सा में दिलाएं और फिर उसकी साइकोथेरेपी करवाएं. साइकाट्रिक एवैल्यूएशन ऐसे पेशेंट की होनी चाहिए. फैक्टिशियस कॉजेज अगर आप वो कर रहे हैं. अब अप्रोच कैसे करेंगे? क्रॉनिक डायरिया है तो आपने लेबोरेटरी टूल्स
एक्सटेंसिव और एक्सपेंसिव होते हैं। अब वो इस तरह से नहीं करवाने कि आपने हर चीज लिख के दे दी पेशेंट को, नहीं भाई। As such, the diagnostic evaluation must be rationally directed by careful history and physical examination. सही बात है, आपने हिस्ट्री ली है, केयरफुल आपने एग्जामिनेशन किया है, उससे आपको कुछ दिमाग में आया होगा, उस हिसाब से आप कराएंगे ना। ये तो नहीं कि बस सब चीजें करा लेंगे। When this strategy is unrevealing, simple try-age tests are warranted. अभी कुछ नहीं मिला आपको फिजिकल, उसमें भी आपको नहीं मिला, तो क्या करेंगे आप? तो फिर आप जो सिंपल ट्रायल टेस्ट करा रहे हैं उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि अब आप क्या कराएं, जो मोर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन होगी। हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड स्टडीज शुड अटेम्प्ट टू कैरेक्टराइज द मैकेनिज्म ऑफ डायरिया। अब जाहिर बात है कि आपने रूटीन ब्लड टेस्ट करा लिया, उसमें आपको एनीमिया मिल रहा है, ESR आपने कराया वो बढ़ा हुआ मिल रहा है, इन्फ्लेमेटरी की तरफ आपको जा रहा है। Identify diagnostically helpful associations and assess the patient's fluid, electrolyte and nutritional status. General physical examination में क्या देखेंगे? Are there features to suggest malabsorption or inflammatory bowel disease? Inflammatory bowel disease यानी कि एनीमिया मिल रहा है, dermatitis herpetiformis मिल रहा है आपको, उसका सीलियक डिजीज का एराइडीमा नोडोजम, एडीमा, क्लबिंग, ये सब मिल रही है क्या आपको? नंबर 2, इट में रिवील clues सच एज थायराइड मास, ठीक है, यानी कि वो होता है ना, क्या होता है थायराइड कैंसर, उसमें भी हो सकता है कैल्सिटोनिन की वजह से डायरिया। लिम्फेडिनोपैथी पिपल्स डिजीज में मिल सकती है। स्किन चेंजेस, इराइडीमा नोडोजम, अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिल सकता है। फ्लशिंग तो नहीं है पेशेंट को, कार्सिनोइड में, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस सीलियक डिजीज में, म्यूकोक्यूटेनियस चेंजेस, एप्थस अल्सर, कीलियोसिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और सीलियक डिजीज में, ठीक है। नंबर 3, आर देयर फीचर्स टू सजेस्ट अंडरलाइंग ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी और कोलेजन वेस्कुलर डिजीज इन द प्यूपिल्स, ऑर्थोस्टेसिस, स्किन, हैंड्स और जॉइंट्स। मतलब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेना, हो सकता है वो डायबिटिक हो, तो डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो रही हो, या उसका ब्लड प्रेशर आपने जब वाइटल साइंस देखे तो आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मिल रहा है, तो उससे आप ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी वो कर सकते हैं। हैंड्स और जॉइंट्स, क्योंकि एंटेरोपैथिक एसोसिएटेड जो सारी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन है वो भी आपने देखनी है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज मिल सकती है? इट में रिवील हिपैटोमेगाली, एब्डोमिनल मासेस मिल सकते हैं आपको, एब्डोमिनल टेंडरनेस, फिर पेरिएनल फिस्टुला, फिशर्स, स्फिंक्टर लैक्सिटी। ये चीजें ना अब रिपीटेड फिशर्स हो रहे हैं, किसी को फिस्टुला हो रहे हैं, तो क्रोन्स डिजीज में हो सकते हैं ना ये सब, तो आप वो चीज सोच सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या मिलेगा? अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एक होता है ना कार्सिनोइड सिंड्रोम, तो उसमें वीजिंग हो सकती है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की वजह से। हिस्टामिन और ये सब मिल रहा है तो उससे निकलता है, उससे काइनेंस, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह ना, तो वीजिंग और ऑस्कल्टेशन मिल सकती है विद फ्लशिंग, डायरिया, राइट। हार्ट मर्मर्स में भी प्रेजेंट, ये कहाँ से प्रेजेंट हो गए? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, इसमें हमने देखा था अभी कार्सिनोइड सिंड्रोम में ही मिलते हैं ना, राइट साइडेड वेल्वुलर डिस्फंक्शन हो सकता है उसमें, तो वो भी आप देख लें। मतलब बहुत सारी चीजें आपको, जैसे ही डायरिया का पेशेंट आया ना, ये सारी चीजें आपने दिमाग में ले आनी है। थायराइड में भी हो सकता है, उसको भी देखना है आपने, कार्सिनोइड, फ्लशिंग और ये सारी चीजें भी देखनी है आपने, मेल एब्जॉर्प्शन उसको, तो फिर आप बहुत अच्छे से अगर इसको समझ लेंगे ना तो आप को सारी चीजें आपके जहन में रहेंगी। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, तो सबसे पहले आप नॉर्मल जो बेसलाइन टेस्ट है वो कराएं, CBC कराइए, CB। एनीमिया आ जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा? ब्लड लॉस करेगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ल्यूकोसाइटोसिस मिल जाएगा, इंडिकेट इन्फ्लेमेशन। इओसिनोफिलिया, अभी मैंने बताया था इओसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस में जो है 50 to 75% में इओसिनोफिलिया उसमें भी मिल सकता है, और पैरासाइटोसिस में मिल सकता है, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज, एलर्जी और न्यूप्लेजिया, ठीक है। नंबर 2, ESR कराया, रेस्ड आ गया तो इन्फ्लेमेटरी डायरिया हो रहा है। नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइट्स कराया, वो डीरेंज आ रहे हैं। LFTs कराया, हिपैटिक डिस्टर्बेंस मिल गई उसमें, तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में होता है स्टिटोरिया। 5, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस अगर हो तो। 6, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, सीलियक डिजीज के लिए वो आप पहले देख लें, अगर एनीमिया है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आयरन थेरेपी से, आप ये करा के देख लें। अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर आपने जुजुनल बायोप्सी या जुजुनल बायोप्सी करानी है। ट्रीटमेंट क्या होगा? ओवरऑल बता रही हूँ, a therapeutic trial is often appropriate, definitive and highly cost effective with specific diagnosis suggested on the initial encounter.
For example, chronic watery diarrhea हो रहा है which ceases with fasting in an otherwise healthy young adult may justify trial of lactose restricted diet. ठीक है, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि शायद लैक्टेज डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से मैल एब्जॉर्प्शन है उसको लैक्टोज का, तो उसको अवॉइड करा दें. Persisting bloating and diarrhea persisting since mountain backpacking trip may warrant a trial of metronidazole for likely giardiasis. ठीक है, तो उसमें आप बगैर किसी चीज को कराए हुए वैसे भी सेल्फ लिमिटेड होता है तो आप metronidazole दे दें. पोस्ट प्रांडल या एक्यूट डायरिया की बात कर रही हूँ. पोस्ट प्रांडल डायरिया persisting since an ileal resection might be due to bile acid malabsorption and be treated by cholesterol before further evaluation. आपको पता है, आपको हिस्ट्री पता है, रिजेक्शन हुई भी है उसकी, तो आप कोलेस्ट्रोमी दे दें. Persistent symptoms require further investigation. अब नहीं जा रहे हैं symptoms, डायरिया हो जा रहा है, तो फिर आप क्या कराएंगे? Surgeon diagnosis may be suggested on the initial encounter. Idiopathic inflammatory bowel disease. However, additional focused evaluation may be necessary to confirm the diagnosis and characterize the severity or extent of the disease so that treatment can be best guided. Patients suspected of having inflammatory bowel disease should be initially evaluated with flexible sigmoidoscopy with colorectal biopsies. Those with normal findings might be reassured. अच्छा, not inflammatory bowel disease, ऊपर जो है वो irritable bowel syndrome है. IBD inflammatory bowel disease होती है. तो IBS अगर सस्पेक्ट करें तो बहरहाल आपने कराना तो है ना उसको, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोरेक्टल बायोप्सीज, इन सब से आपने एक्सक्लूड करना है. Those with normal findings might be reassured and, as indicated, treated empirically with antispasmodics, antidiarrheal, bulk agents, anxiolytics, or antidepressant, depending upon the patient general condition. Any patient who presents with chronic diarrhea and hematochezia should be evaluated with stool microbiologic studies and colonoscopy. इसमें तो आपने फिर कराना है ना colonoscopy. In an estimated 2/3 of the cases, the cause of chronic diarrhea remains unclear after the initial encounter, and further testing is required. Quantitative stool collection and analysis can yield important objective data that may establish a diagnosis or characterize the type of diarrhea as a triage for focused. If stool weight is more than 200 grams per day, additional stool analysis should be performed that might include electrolyte concentration, pH, occult blood testing, leukocyte inspection for leukocyte protein assay, यानी कि fecal calprotectin, fat quantification and laxative screen. Fat quantification फिर malabsorption में हम डिस्कस कर लेंगे. Secretory diarrhea में what we normal osmotic gap, possible medication related side effects, surreptitious laxative use should be considered. Microbiologic studies should be done including fecal bacterial cultures, including media for Ehrlichiosis, Pelicemonas, inspection of ovoparasites and Giardia antigen assay, the most sensitive test for giardiasis. यानी कि giardiasis के लिए सबसे sensitive test क्या है? Giardia antigen assay. Small bowel bacterial overgrowth can be excluded by intestinal aspirates with quantitative cultures or with glucose or lactulose breath test involving measurement of breath hydrogen, methane or other metabolite. अगर हिस्ट्री में आपको ऐसी कोई फाइंडिंग मिल रही है तो स्क्रीन फॉर पेप्टाइड हार्मोन शुड बी डन, सीरम गैस्ट्रिन, VIP, कैल्सिटोनिन, थायराइड, TSH, यूरिनरी 5-हाइड्रोक्सी, इंडोल एसिटिक एसिड एंड हिस्टामिन. मतलब जब आप ये सस्पेक्ट करें तब, सबको नहीं. Upper endoscopy and colonoscopy with biopsies and small bowel barium X-rays are helpful to rule out structural or occult inflammatory disease. ठीक है. अब evaluation osmotic diarrhea अगर हो रहा है तो further evaluation of osmotic diarrhea should include test for lactose intolerance and magnesium ingestion. The two most common causes, lower fecal pH suggest carbohydrate malabsorption. अगर fecal pH लो आ रही है तो उसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट नहीं एब्जॉर्ब हो रहा. लैक्टोज malabsorption can be confirmed by lactose breath testing or by therapeutic trial with lactose exclusion and observation of the effect of lactose challenge. For example, Aleta of milk. If fecal magnesium or laxative levels are elevated, then an advertent or surreptitious ingestion should be considered and psychiatric help should be sought. ठीक है, यानी कि Munchausen syndrome पे होगा इसको. For those with proven fatty diarrhea, अब हो गया भाई स्टीटोरिया हो रहा है तो एंडोस्कोपी कराएं with small bowel biopsy
Aspiration for giardia and qualitative culture should be performed. If this procedure is unrevealing, a small bowel radiograph is often the next appropriate step. If small bowel studies are negative or if pancreatic disease is suspected, pancreatic exocrine deficiency should be excluded with direct tests such as secretin cholecystokinin stimulation test. अब ये pancreatic insufficiency के टेस्ट हैं. Secretin cholecystokinin stimulation test or a variation that could be performed endoscopically in general. Indirect tests such as fecal chymotrypsin activity or Benny tyromide test. मतलब पहले ना फीकल काइमोट्रिप्सिन एक्टिविटी और बेनी टायरोमाइड टेस्ट कराते थे, लेकिन वो उनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी लो है, तो अब जो है ना वो नहीं करते हैं और सिक्रीशन कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेशन टेस्ट ही कर लेते हैं. ठीक है. अब क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डायरिया, उसमें आप सस्पेक्ट करेंगे जिसमें प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ल्यूकोसाइट हो स्टूल में. Such findings warrant stool culture, specimen for ova and parasite. C. difficile toxin. हमेशा जब भी ये सब चीजें होंगी आपने एक्सक्लूड करना है. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में सब नेगेटिव आ जाएगा. कोई कल्चर नेगेटिव होगा, पैरासाइट कोई नहीं आएगा, सी डिफिसिल टॉक्सिन वो नेगेटिव होगा. फिर कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सीज एंड इफ इंडिकेटेड स्मॉल बाउल कंट्रास्ट स्टडीज करा लेंगे आप. ठीक है. अच्छा, बहुत हो गया. बहरहाल ट्रीटमेंट इसका आप कैसे करेंगे क्रॉनिक डायरिया का, डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक एटियोलॉजी. ठीक है. मे बी क्यूरेटिव, मे बी सप्रेसिव, मे बी एम्पिरिकल. If the cause can be eradicated, treatment is curative, as with the resection of a colorectal cancer, antibiotic administration for Whipple's disease, or discontinuation of a drug. ठीक है. तो ये तो आपका क्यूरेटिव हो गया. For many chronic conditions, diarrhea can be controlled by suppression of the underlying mechanism. Example है eliminate कर दें dietary lactase deficiency में, gluten को celiac disease में, glucocorticoid यूज कर लें for anti-inflammatory agents for idiopathic inflammatory bowel disease में, absorptive agents such as cholestyramine, aerial bile acid malabsorption, proton pump inhibitors such as omeprazole for gastric hypersecretion or gastrinomas, somatostatin analogs such as octreotide for malignant carcinoid syndrome, prostaglandin inhibitors such as indomethacin for medullary carcinoma of thyroid, and pancreatic enzyme replacement for pancreatic insufficiency. When the specific causes or mechanism of chronic diarrhea evades, मतलब नहीं समझ आया, आपने सब कुछ कर लिया फिर भी आपको नहीं समझ आया, तो empirical therapy may be beneficial. Mild opiates such as diphenoxylate or loperamide are often helpful in mild or moderate watery diarrhea. For those with more severe diarrhea, codeine or tincture of opium may be beneficial. Such antimotility agents should be avoided with IBD, यानी कि inflammatory bowel disease में नहीं देना चाहिए. As toxic megacolon may be precipitated. ठीक है. तो उसमें आप ये सारी चीजें ना दें. Clonidine as alpha-2 adrenergic agonist may allow control of diabetic diarrhea. For all patients, fluid and electrolyte depletion is an important component of the management. Replacement of the fat-soluble vitamins may be necessary in the patient with chronic steatoria. ये हमारा खत्म हो गया. रेफरेंस मैंने हैरिसन टेक्स्ट ऑफ इंटरनल मेडिसिन से लिया 2021. ठीक है. तो प्लीज़, ये मेरा हाल तो इतना लंबा हो गया, दो ही उसमें मैं कर दूँगी इसको डिवाइड. तो नेक्स्ट टाइम फिर हम इंशाल्लाह मैल एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, तो वो अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. अगर इसको आपने एक दफ़ा समझ के और दिमाग में रख लिया तो मैल एब्जॉर्प्शन का केस आप बहुत आसानी से कर लेंगे. ठीक है. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. ज़रूर मुझे कमेंट लिखिएगा. ओके, खुदा हाफ़िज़.